With less than 10 days left for BITSAT 2026 second session, we wanted to make this video जिसमें we tell you about some of the do's and don'ts which you should be aware about and implement in the final days to get the maximum impact. After so many months of preparation, you have finally reached the BITSAT final lap. Everything that you do in these final days will define the final score and the final temperament that you have in the exam hall. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी preparation अच्छी होती है. They have done enough hard work towards PCM as well as English and logical reasoning. बहुत सारे mock test देते हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, बट फिर भी लास्ट फाइनल डेज में दे एंड अप डूइंग सम मिस्टेक्स ड्यू टू विच उनका फाइनल एग्जाम डे पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. आई एम प्रीटी श्योर दैट मेनी ऑफ आवर क्लबमेट्स वाचिंग दिस वीडियो who are scoring 250 or 230 marks in the Fordu Club mock tests, in the final exam when you went to write BITSAT, you ended up scoring less than 200 marks because आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी. Either आप nervous हो गए या फिर you had not done enough revision or there was some other problem and everything led to a chain reaction which ultimately affected your score. The keyword that I mentioned is chain reaction. One mistake leads to the other mistake. And that is why we wanted to tell you कि what are the do's and don'ts. ऐसी क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए जिसके कारण एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है विच विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर फाइनल स्कोर. सो एक एक करके लेट्स डिस्कस. आई हैव स्प्लिट दिस वीडियो इन 4 पार्ट्स: सिलेबस, मॉक टेस्ट, रिविजन एंड माइंडसेट. These are the only 4 things that are going to matter when you have less than 10 days left for the exam. अभी बहुत सारी चीज़ें के बारे में सोचने का टाइम नहीं है. अगर आप इन 4 चीज़ों में जो मैं डूज एंड डोंट्स बोल रहा हूँ, जो मैं मिस्टेक्स बोल रहा हूँ आपको, वो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और एटलीस्ट मेंटेन होगा. इट विल नेवर लेट यू ड्रॉप योर स्कोर. सबसे पहली चीज़, लेट्स डिस्कस अबाउट सिलेबस. It is possible that a lot of you are done with your JEE Advanced just now, and because you have done JEE Advanced level preparation, you must have not taken a lot of BITSAT important topics seriously. So अभी बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है. You hardly have 7 to 10 days left for the exam. So don't start too many heavy topics. Rotational motion और center of mass ऐसे टाइप के टॉपिक्स मत उठाना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं and they require a lot of time and patience. You can do the small and theory based topics जैसे chemistry में हो गए या फिर some small maths topics like linear programming हो गया. You can take up these topics and you can do them, but ensure that you stop doing extra syllabus 3 days before the exam. Even if you're a purely BITSAT aspirant और JEE Advanced स्टूडेंट जो अभी BITSAT में ट्रांजिशन कर रहा है, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू 2 to 3 days बिफोर द एग्जाम, बिकॉज इन दिनों में इफ़ यू स्टार्ट समथिंग न्यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वो आपको उस डेप्थ में या फिर उस लेवल पे याद नहीं रहेगा फाइनल एग्जाम हॉल में. एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू थिंग जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट ऑल्सो विल गेट अफेक्टेड वेरी वेरी ड्रास्टिकली. So don't start any heavy topics at this point of time. It's okay if you want to do some small topics or theory based topics in chemistry, maths, physics, जो भी है, but उसको भी moderation में करना and stop doing the topics 2 to 3 days before the exam. If you are in Fordu Club's crash course and want to do English and logical reasoning, then that is completely fine because उसमें बहुत सारी ऐसी नई अतरंगी चीज़ें नहीं आएंगी. It is going to be very basic logic based, इसलिए वो आप कर सकते हो. But PCM में please avoid and follow this syllabus का do's and don'ts. Next, let's talk about the mock tests. अब जितना टाइम हमारे पास बचा है, in that amount of time we cannot do 10 or 15 mock tests. If you're serious, then you must have already written 10 to 15 mock tests for BITSAT, and अगले थोड़े दिनों में you can write 2 to 3 more mocks. We are also going to do BITSAT Open, so उसके लिए भी आप जाके नीचे रजिस्टर कर लेना and give it like another mock test. BITSAT Open को मिला के you can give 3 mock tests. Don't give more mock tests than this at this point of time because you will not get the time to analyze it and to improve जो भी आपने mistakes करी हैं उनको. If you were a JEE Advanced student till now and you do not know how BITSAT pattern works, in that case you can write 5 mock tests, 4 to 5 mock tests just to see कि pattern कैसा होता है, क्या मतलब आपको time management कैसे करनी है, strategy क्या लगानी है. तो उसके लिए आप 4 to 5 mock tests दे सकते हो, but don't go beyond 5 mocks. At this point of time, you do not require it. You can check out Fordu Club's 5 mocks pack. उसमें हमने 5 mock tests आपको दिए हैं, which are designed as per the BITSAT session 1, and उसको आप दे सकते हो. उतना ही enough रहेगा at max. Do not go beyond 5 mocks at this point of time. One thing that I want everyone watching this video to do is that no matter how many mocks you have given, analyze all the mocks till date, and you need to ensure that जो भी questions आपने आज तक mock test में किए हैं, चाहे वो सही थे, गलत थे, या फिर आपने गलत मार्क कर दिए थे, या फिर आपको पता नहीं था, किसी भी केस में आपको ये इंश्योर करना है दैट यू नो ऑल द क्वेश्चंस. इफ यू हैव गिवन 10 मॉक टेस्ट, ईच मॉक हैज 130 क्वेश्चंस, 130 into 10, 1300 क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपको पता होने चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है. एटलीस्ट इफ यू आर इन Fordu Club, द क्वेश्चंस आर मेड इन सच अ वे दैट दे आर एक्सट्रीमली रेलेवेंट टू सम और द अदर शिफ्ट ऑफ BITSAT. सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि सिमिलर टाइप के, सिमिलर
फॉर्म के क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे. जस्ट बाय नोइंग 1300 और मोर क्वेश्चंस यू आर एंश्योरिंग दैट कि जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाएगा. सो उस केस में यू विल नॉट हैव टू थिंक मच एंड यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन अप्रोच. सो मॉक टेस्ट में ये 3 पॉइंट याद रखना. जेईई एडवांस के बच्चों तो यू कैन गिव 1 or 2 मॉक्स एक्स्ट्रा, बट डोंट गो बियॉन्ड 4 or 5 बिकॉज दैन इट डजंट मेक सेंस. आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. Now let's talk about revision. At this point of time, trust me when I say this, revision is at least 4 times important as compared to syllabus coverage. अभी के point पे बहुत सारे बच्चे क्या भूल जाते हैं? They forget that कि the retention is much more important than the coverage. आपने भले ही 100% syllabus cover कर रखा हो, लेकिन आपने अगर बस 60% रिवाइज कर रखा है तो आप पेपर में 60% ही हाई एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे. इसलिए from now onwards give maximum of your time every day towards revision. Ensure that कि आपने आज तक जो भी पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो भी पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर लो. एक साइकिल और फिर दूसरी साइकिल रिवाइज कर लो ताकि आप सब कुछ याद रख पाओ. और सम अदर थिंग्स विच यू आर वीक एट यू कैन ऑल्सो रिवाइज दैट 3 or even 4 times for your retention. Always remember, retention is better than coverage. This is the mantra that you have to follow in the coming days. अभी सिलेबस कवरेज का कोई फ़ायदा नहीं है. आपने जितना पढ़ा है अगर आप उसको याद कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. This is the literal time for which you had made short notes in the last 2 years. अगर आपने नहीं बनाया है short notes तो you can refer our short notes. I'll give the link in the description. Use short notes, handbook, ऐसे टाइप के resources and revise everything as soon as possible. I know I'm repeating this and again, बट जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको फाइनल पेपर में फ़ायदा होगा. इतने हाई प्रेशर, हाई मतलब ऐसे इंटेंस एनवायरनमेंट में ओनली दोज थिंग्स हेल्प यू जो आपको फास्ट याद आ जाए. एंड फास्ट याद आने के लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा. आई एम प्रीटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ क्लबमेट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो मस्ट हैव एनकाउंटर्ड समथिंग इन देयर बिटसैट सेशन 1. जब वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे उन्होंने पढ़ा एंड दे आर लाइक कि हाँ यार मुझे याद तो आ रहा है, आई कैन रिमेंबर दिस बट आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला हैड प्लस और माइनस. आई डोंट रिमेंबर अगर इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में था या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, है ना. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रिविजन फिक्स कर लेता है. एंड वैसी मिस्टेक्स आई डो नॉट वांट यू टू मेक इन द सेकंड सेशन. लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द माइंडसेट. माइंडसेट तो क्या ही होता है भैया, हार्डली 7-10 दिन बचे हैं. अभी तो माइंडसेट का क्या ही बचा है, अभी तो टाइम चला गया. ऐसा नहीं होता. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो माइंडसेट रहता है दैट एक्चुअली डिसाइड्स योर फाइनल स्कोर. इसलिए एंश्योर दैट यू आर ओनली इन्वाइटिंग पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड. डोंट लेट नेगेटिव एनर्जी एंटर इन यू. कोई अगर फ्रेंड्स हैं या फिर कोई अगर फैमिली में रिलेटिव्स हैं जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर डाल रहे हैं, उनको दूर रखो, उनको इग्नोर करो एंड ट्राई टू ओनली हैव पॉजिटिव थॉट्स अबाउट योर प्रिपरेशन. ईट हेल्दी फूड, डू नॉट ईट एनीथिंग टू मच ऑयली या फिर टू मच फ्राइड, है ना. वैसे टाइप की चीज़ें मत खाना बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका पेट इज़ हेल्दी एंड फिट then you will be able to think in the right direction and आपको कोई discomfort नहीं होगा. Lastly, focus on the things that are your strengths. जो आपने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हैं या फिर जो चीज़ों के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, focus on revising them. उन्हीं के बारे में सोचो when you think about your preparation. Don't think about the things that you don't know. The more you focus on the things that you don't know, the more bad you will feel and the more uncomfortable you will feel, the more underconfident you will feel. इसलिए उन चीज़ों को बिल्कुल मत सोचो, बस स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक स्माइल लेके एग्जाम में जाना एंड तभी जाके यू विल बी एबल टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल. सी वट एवर हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 years. करंटली द ओनली थिंग यू कैन एंश्योर इज दैट कि यू गेट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल जहाँ पे आपने पढ़ाई करी है. अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ या फिर उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में तो उससे ज़्यादा दुख कभी नहीं होगा आपको लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन. इसलिए एंश्योर दैट कि आपने जितनी पढ़ाई करी है आप एटलीस्ट उतने डिजर्विंग मार्क्स तो स्कोर करो. एंड इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे डूज एंड डोंट्स में तो ट्रस्ट मी नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द maximum potential you have. That's pretty much it for this video. I want all of you to go in the comment section and comment I will do it, I will follow it and मैं आपको बिट्स पिलाने में मिलूंगा इस साल. ठीक है. So that's it for this video. Please ensure that you're following every single thing that I mentioned in this video because आपको शायद हो सकता है अभी वो इतने serious ना लगे. But based on the experience we've had at Fodu Club, all of these points are the major reasons why students make mistakes in the final exam. And obviously, we don't want you to make those mistakes. We want to meet you at BITS Pilani this year. So all the very best for BITSAT and साथ में फोड़ेंगे.